आओ जिंदगी की सांझ को साझा कर ले, आओ जिंदगी की सांझ को साझा कर ले, आओ जिंदगी की सांझ को साझा कर ले, आओ जिंदगी की सांझ को साझा कर ले। Good evening, everyone. Good evening. गुड इवनिंग। So, बड़ों को प्रणाम, साथियों को नमस्ते और छोटों को प्यार. Thank you all for joining us today. COVID-19, Corona or lockdown has become a dreaded word in today's times. पर इस बात भी सच ये है कि सही प्रिकॉशंस और केयर से हम अपने आप को कोरोना के इम्पैक्ट से बचा के रख सकते हैं. When I say impact of corona, it is not just about the infection or the disease, it is also about the other impact due to overall environment, including the effect on economy and staying indoors due to self-imposed or state-imposed lockdown. आज हम लॉकडाउन के 4 एक्सटेंशंस के बाद अनलॉक 1 में हैं. याद कीजिए वो दिन जब हम लॉकडाउन 1 के दिन में थे. सब कुछ बंद था, घर से बाहर निकलना बैंड था. पर हमारे बीच ऐसे कुछ लोग आज भी हैं जो आज भी लॉकडाउन 1 जैसी सिचुएशन में जी रहे हैं. दैट इज स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए आज भी हैं. ये वो हैं जिन्हें हम वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहते हैं, घर के बच्चे और हमारे बुजुर्ग. हरिकृत एनजीओ पिछले 17 साल से बुजुर्गों के लिए बेहतर एनवायरनमेंट बनाने के लिए कार्यरत है. इस बात से कैसे अनजान रहे कि हमारे बुजुर्ग आज भी लॉकडाउन में हैं. हरिकृत एनजीओ की फाउंडर सेक्रेटरी जेवी मनीषा जी इस बात को लेकर कई बुद्धिजीवियों और डिसीजंस मेकर के साथ डायलॉग में रही हैं. और ये वेबिनार सीरीज सांझी सांझ हेल्थ टिप्स उसी का नतीजा है. इतने लंबे अरसे तक लॉकडाउन में रहना आसान नहीं, ये बात हम सब जानते हैं. इसलिए इस वेबिनार सीरीज द्वारा हम अलग अलग टॉपिक्स के पे बात करेंगे जो हमारे सीनियर्स के लिए फायदेमंद हो. इस श्रृंखला के फर्स्ट सेक्शन में और इसके आगे और क्या क्या होगा वो आप जानेंगे वेबिनार के लास्ट सेक्शन में. पर इससे पहले हम आज शाम की शुरुआत करेंगे आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफ के कुछ टिप्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन से, और फिर हम चलेंगे बहुचर्चित कलाकार, टीवी एंड फिल्म पर्सनालिटी रवि झाकल जी के पास, जो शेयर करेंगे अपने दिल की बात और एक्सपीरियंसेस. बिफोर वी मूव अहेड, I would definitely like to add here that whatever will be shared today has our seniors as the focal point. However, I strongly believe that we all can take benefit from the tips and opinions that will be shared today. So let's start the evening with the Ayurveda way of life tips. It is my pleasure to introduce Dr. Medha Sanjay Kulkarni, who is a BA MS, MD, Swasthvrat PhD. She is a pillar behind Ayurvedic practitioners and Ayurvedic doctors, as she is the expert who teaches and guides Ayurvedic students, is on the panel of many universities as a moderator, and is involved in the research work associated with the field. She has written 3 big books, over 40 journals, which include more than 16 international journals. She has also received multiple awards for her work. All in all, she is a go-to expert and speaker on topics pertaining to lifestyle management. We could not have wished for a better expert to grace the introductory session of our webinar, Sanji Sanj Health Tips. Just a basic point before we start. All attendees will be able to ask questions from the experts
at the end of their session. So you can share your questions in the chat box and I'll be happy to read them out for Dr. Kulkarni to answer after her presentation. Over to Dr. Medha Kulkarni. Hello. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, you're okay. Yes, madam, yes. Yes. So, Rashi has given a lot of information about me. Just to correct a little bit, those are not journals, but the articles in the journals regarding the lifestyle, yoga, and all those things. And one more thing, I would like to mention here that I am working in All India Institute of Ayurveda in Sarita Vihar, which is a institute attached with Ayush Ministry. And in that, I am working as a professor in Swastha Vrutta, that is the lifestyle management subject of Ayurveda. So today, I welcome all of you, and I will start my presentation regarding the elders still under lockdown coping mechanism. So हम जानते हैं कि लॉकडाउन जैसे 23 मार्च को इम्पोज किया गया, तो उस 15 दिन तक तो हम बहुत खुशी में थे कि we are spending quality time, we are relishing very much nice recipes done by our mother, our sister and everyone. And after 15 days, still more 15 days or 21 days were again imposed. Then also we were a little bit happy and we were getting used to lockdown. But after that, after third or fourth lockdown, the boredom started. And again, simultaneously, the corona picture was getting worse. And so a feeling of panic, a feeling of fear, it was started accumulating in our mind. And social distancing, किसी से मिलना नहीं है, किसी से घर जाना नहीं है, सिर्फ फोन पे बात करो, टीवी पे सुनो या घर के जो मेंबर्स हैं उनके साथ बात करते रहो, तो ये थोड़ा सा बोरिंग होने लगा. और साथ साथ में एंजाइटी, जिसे हम नैराश्य कहते हैं, ऐसे हमारे सिम्टम्स दिखने में आ गए. तो अल्टीमेटली इट स्टार्टेड. देन अभी लॉकडाउन बिगिन शुरू हुआ है, लॉकडाउन हमें धीरे धीरे खत्म करने की बात चल रही है. Even though elders are not allowed because they are vulnerable population. So we'll start with my presentation. Next slide, please, madam. Yes, ma'am. So this is a very first slide. Corona disease, first slide. So this is मैंने specifically ये green color में corona लिया है क्योंकि हमें green zone में जाना है, हमें रेड जोन में नहीं रहना है. और ये जो स्पेशल हमारे लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए हमने लॉकडाउन वी आर फोर्सिंग देम टू स्टे एट होम, वो इसी के लिए है कि वो जल्द से जल्द कोरोना के इस ग्रीन जोन में हम जाने वाले हैं. सो दैट्स व्हाई आई पुट दिस स्लाइड इन ग्रीन. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम. अभी का सिनेरियो क्या है, आप सबको पता है कि सब न्यूज पे देखते हैं, बहुत सारे न्यूज देखते रहते हैं, यहाँ वहाँ सभी न्यूज चैनल्स में कोरोना की ही बातें होती है. कितने पेशेंट्स हुए, कितने रिकवर हुए, कितने मोर्टेलिटी हुए, क्या क्या हुआ, हैंड सैनिटाइजेशन करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे ऊपर डाली जा रही है. तो एक छोटा सा इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, ये जो डिजीज है उसका स्प्रेड जो होता है वो पर्सन टू पर्सन, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में सिर्फ वो अपने जो सिक्रीशंस होती है, जब वो कफिंग करता है, जो स्नीज करता है या स्पीक बोलता है, तो हमारे मुंह और नाक में से जो सिक्रीशंस बाहर छींटे की तरफ से जाते हैं उनके द्वारा ये फैलता है. और इसका ये क्या है कि इसीलिए हमें बचना है, इसीलिए मास्क पहनना हमें अनिवार्य क्यों कर रहे हैं, तो ये हमें अपने आप को बचाना है, अपने से दूसरों को भी बचाना है. और इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स, एंड हेंस दिस लॉकडाउन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम. अभी कोरोना जो है उसकी ट्रीटमेंट क्या है, बहुत सुनाई दे रहा है कि ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, ऑक्सीजन देना पड़ता है, या फिर फीवर आता है, कफ आता है. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट आज
आज तक अभी एलोपैथी में या आयुर्वेद में हम नहीं कह सकते कि ये कोरोना की ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि ये कोरोना जो है ये नया वायरस है, ये अभी तक नहीं आया था, तो ये नया वायरस है। इसके लिए जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए ड्रग्स है, डायबिटीज के लिए ड्रग्स है, मलेरिया के लिए ड्रग्स है, वैसा अभी इसके लिए ड्रग अभी बना नहीं है। ये जो भी दे रहे हैं वो सिम्टोमेटिक दे रहे हैं। जैसे फीवर के लिए फीवर कम करने की दवा है, कफ के लिए कफ कम करने की दवा है। तो इसीलिए हमें सावधानी बरतनी होगी और इसीलिए हमें लॉकडाउन में रहना होगा, किसी से संपर्क ना करें। यही हमारी ट्रीटमेंट का एक पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि एल्डरली लोगों को अभी भी हम घर पे ही रहने की सलाह दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो है वो कम होती है। उसी के साथ साथ जो बच्चे हैं, जो 10 साल के नीचे वाले बच्चे हैं एंड प्रेग्नेंट लेडीज, 2 साल, ये तीन जो ग्रुप है वो मोर वर्नरेबल है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। जैसे ओल्ड एज में अलग अलग तरीके से हमारे डिजीजेस होते हैं, जैसे हम लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनको बोलते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, जैसे डायबिटीज है, जैसे आर्थराइटिस है। इन सारी चीजों को दवाई के साथ हम जीते रहते हैं। तो इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है वो पहले से ही थोड़ी कम हुई जाती है। तो इसीलिए हमें प्रिकॉशन की तरह से हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम एल्डरली किसे कहेंगे, किस पॉपुलेशन को एल्डरली कहेंगे? मेरी उम्र 57 है, तो मैं क्या एल्डरली में आती हूँ? तो आ सकती हूँ, लेकिन अगर हम बुक के द्वारा देखा जाए, बुक में जो डेफिनेशन दी है वो देखे जाए, तो यंग ओल्ड, मिडिल ओल्ड एंड ओल्ड ओल्ड, इस 3 तरह से क्लासिफिकेशन ओल्ड एज का किया है। जो 65 एंड अबव है उनको हम यंग, सेकेंडली तो 75 टू 85 के ग्रुप में है वो मिडिल एज ओल्ड है, एंड 85 एंड अबव जो है वो ओल्ड एज, राइपेंड ओल्ड एज, जिनके पास बहुत सारा अनुभव है, तो ऐसे हम ओल्ड पीपल कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी इस कोरोना से बचाव क्या करना है? जैसे मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि इसको हमें दूर रखना है, इसको हमें अपने शरीर में नहीं लाना है। तो बहुत सारी चीजें आजकल बताई जाती है, जैसे आयुष मिनिस्ट्री ने भी बहुत एक एडवाइजरी डिक्लेयर की है, उसमें उन्होंने, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एडवाइजरी दी है, जैसे मास्क पहनिए, बार बार हैंड सैनिटाइजेशन कीजिए, किसी से दूर रहिए, या बिना कारण आप घर से बाहर मत करिए, या स्टे होम, ऐसा हमने जो कहा है, तो ये प्रिवेंशन के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना लाइफस्टाइल, अपनी इम्यूनिटी भी बरकरार रखनी है। तो ये इम्यूनिटी हम कैसे बरकरार रख सकते हैं? तो 2-3 चीजें है। एक तो पर्सनल केयर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम। अभी हमें हेल्दी लाइफस्टाइल लानी है, तो हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल लानी है, इसके लिए हेल्दी बॉडी चाहिए, सेकेंडली हेल्दी माइंड चाहिए, तभी हम कहेंगे हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। हमारे आयुर्वेद में एक डेफिनेशन है, इसको हम हेल्दी कहते हैं, जिसका फिजिकल जो सभी चीजें हैं वो हेल्दी है, जिसकी मेंटल एस्पेक्ट है वो हेल्दी है, जिसका सोशलाइजेशन या सोशल हेल्थ है वो हेल्दी है, एंड लास्टली जिसकी स्पिरिचुअलिटी में की तरफ हेल्थ है वो हेल्दी है। तो ये चारों कंपोनेंट जब साथ में रहेंगे तभी हम कहेंगे कि वो हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ है। नेक्स्ट स्लाइड। इसलिए टोटल हेल्थ जो है वो इन 5 चीजों पे है। इसमें है फूड एंड डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। ये तीनों जो चीजें है वो है हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो मानसिक तौर पे साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है, एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अवर सोशल हेल्थ। तो ये सारी एस्पेक्ट, ये टोटल हेल्थ हम जब कहेंगे तो ओनली बॉडी या फिजिकल हेल्थ होना यही एक चीज नहीं है, उसके साथ में मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, एंड लास्टली इस उम्र में हम कहेंगे स्पिरिचुअल हेल्थ।
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम। तो अभी ये कोप अप स्ट्रेस जो है, ये लॉकडाउन की वजह से हमें बोर्डम जो आता है या फिर हमें जो डर लगता है, एंजाइटी लगती है, कब खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हम न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि सभी आर्थिक व्यवहार ठप हो गए हैं, लोगों के जॉब चले जा रहे हैं। तो अपने घर में जो हमारे यंगर जनरेशन है उनके लिए भी हम चिंतित हो जाते हैं कि अभी इनका क्या होने वाला है, बच्चों के स्कूल नहीं खुल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे मन में, हमारे आंखों के सामने, हम ओल्डर जनरेशन के सामने हम देख रहे हैं। और अगर हमारे बच्चे खुश नहीं है, अगर हमारे बहू बेटे खुश नहीं है, तो हम भी खुश कैसे रह सकते हैं, ये हमारे दिमाग में आ सकता है। लेकिन ये चीज तो है ही, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो दो चीजें होती है, जो हमारे कंट्रोल में है वो चीज हम कर सकते हैं, जो बियॉन्ड हमारे कंट्रोल है उसको हम छोड़ सकते हैं। जो जैसे जब होगा उस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे। तो ये जो स्ट्रेस है उसको कोप अप करने के लिए कुछ हमारे पास चीजें कही गई है, आयुर्वेद में कुछ चीजें कही गई जिसको हम इन कंट्रोल, विद इन आवर रीच जो कंट्रोल होता है वो हम कैसे कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, जो भी हम स्ट्रेस फीलिंग कर रहे हैं या डर लग रहा है या कभी कभी वो डर की वजह से हम एंग्री हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, तो ये दिस इज वेरी मच नेचुरल थिंग है, जो हमारा रिस्पॉन्स है। इस सारी सिचुएशन में जो हमारा रिस्पॉन्स है ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है, इसमें कुछ भी मेंटल हेल्थ वाली बात नहीं है, मेंटल इल हेल्थ वाली बात नहीं है। तो दिस इज अ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सच टाइप ऑफ सिचुएशन। तो अभी हमें क्या करना है, ये स्ट्रेस कोप अप करने के लिए हमें जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करनी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया कि 5 चीजें जो है उसका हमें ख्याल रखना है। तो एक डेली रूटीन हमें बनाना है। जैसे हमारा एक डेली रूटीन होता है, जैसे लॉकडाउन के पहले हमारा एक डेली रूटीन होता था, सुबह उठते थे, चाय पानी वगैरह होता था, उसके बाद में बच्चों के साथ थोड़ा बहुत हंसते खेलते थे, बच्चे चले जाते थे, हम घर पे रहते थे, टीवी देखते थे, या कुछ ऐसी बातें हमारी डेली रूटीन होती थी। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रेस है और घर में प्रायोरिटीज चेंज होती जा रही है। तो इस सिचुएशन में हम जो ओल्डर जनरेशन है उन्होंने अपना अपना एक रूटीन बनाना है। और वो रूटीन किस लिए है कि अपनी हेल्थ के लिए है और अपनी वजह से दूसरों को कुछ तकलीफ ना हो। जैसे अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो उनको तकलीफ हो जाएगी, तो इसलिए वी हैव टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड इसलिए एक डेली रूटीन हमें बनाना है। तो आइडियल डेली रूटीन क्या होता है, तो आयुर्वेद में दिनचर्या जिसको कहते हैं, उसमें राइट फ्रॉम वेकिंग अप, जैसे वहां पे कहा गया है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठित, यानी सुबह उठना जो है वो जल्दी उठना है, जो सूर्योदय होता है तब उठना है। उसके कई कारण है, उसके हमारे शरीर में जो दोषों की प्रवृत्ति होती है, जो धातु होते हैं, उन सभी का एक हार्मोनी बनाए रखने के लिए ये सब चीजें जरूरी होती है। तो दैट इज वाई मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना ये जरूर करना चाहिए। उससे हमारी ओल्ड जनरेशन में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की। तो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बजाय आप अलग अलग तरीके से चूर्ण या कुछ गोलियां खाए, तो उससे पहले अगर आप जल्दी उठे, यानी 5:30 या 6 बजे के बीच में उठे, तो ये प्रॉब्लम जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो मैंने अभी बताया दोष धातु ये होते हैं, उनका एक रेगुलर नॉर्मल सर्कल ये रहता है, रिदम रहता है। वो इस रिदम के अनुसार कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अगर हम जल्दी उठते हैं तो अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से है ये मॉर्निंग का रूटीन है। जैसे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा सा घर में ही वॉकिंग कर लिया, या अपने बिल्डिंग में या अपने सोसाइटी में थोड़ी सी जगह है तो वहां पे थोड़ा सा 10-15 मिनट का वॉक कर लिया, एक आधे घंटे का योगा प्राणायाम योगा वगैरह कर लिया। तो ये एक डेली रूटीन का पार्ट हमें बनाना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम। इसी तरह से सुबह का जो रूटीन है उसी तरह से हमें आफ्टरनून का भी रूटीन सेट करना है और इवनिंग का भी रूटीन सेट करना है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें दूसरे के इसमें दखल अंदाजी न करते हुए अपना अपना रूटीन सेट करना है। जैसे खाना है, खाना समय पे खाना है, वो मैं आगे बताऊंगी कि किस समय पे
कौन सा समय उचित होता है खाने के लिए। तो इस तरह से दोपहर में सोने की आदत बहुत सारे ओल्डर जनरेशन में लोगों को होती है, उनको रात को नींद नहीं आती है, इसलिए वो उनको लगता है हम दोपहर में सो, लेकिन दोपहर में सोने से रात को और देर से नींद आएगी, और जब आप रात देर से सोएंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। तो इसलिए एज फार एज पॉसिबल आई विल सजेस्ट दैट अवॉइड डे टाइम स्लीपिंग। सुबह शाम घर में प्राणायाम करें, या सुबह भी एक्सरसाइज या योगा करें, शाम को भी एक्सरसाइज या योगा करें। इस तरह का आप रूटीन में आपके समावेश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी मैं आपको डाइट रेजिमेंट के बारे में बताऊंगी कि क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है, नेक्स्ट स्लाइड, हमारी जो इम्यूनिटी है वो डाइट पे बहुत ही तरह से निर्भर होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि डाइट कॉजेज डिजीज। अभी आप बोलेंगे कोरोना तो कोरोना के वायरस से होता है, ये थोड़ी डाइट से होता है, लेकिन आपके आसपास जो हम आंकड़े देख रहे हैं कि जो लोग ठीक होके बाहर आ रहे हैं या जिनका सिम्टम्स लेस है, यानी माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स है, क्योंकि अगर आप उनका एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो उनका जो इम्यूनिटी है वो अच्छी है, इसलिए उनको ये तकलीफ कम हो रही है कोरोना की। तो बेसिकली इफ अवर diet is good, our routine is good, our lifestyle is good, then our immunity ultimately becomes strong, and अगर कोरोना हो भी जाए तो हम उसमें से जल्दी निकल आ सकते हैं। तो इसलिए अल्टीमेटली डाइट कॉजेज डिजीज। और आयुर्वेद में तो डाइट को महाभैषज्य कहा है। महाभैषज्य का मतलब होता है सुप्रीम मेडिसिन क्योंकि डाइट के बिना कौन सा भी मेडिसिन काम नहीं करता है। डाइट कॉजेज डिजीज, डाइट क्योर्स डिजीज। तो इसलिए हमें डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंस देना होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डाइट रेजिमेंट क्या करना है? तो आयुर्वेद के हिसाब से आपको लंच जो है वो ज्यादा मात्रा में लेना है। ज्यादा माने जो आपकी एपेटाइट है उसके अनुसार लेना है। बहुत नॉर्मली भी कहा जाता है कि लंच जो है वो राजा की तरह होना चाहिए और रात का खाना जो है वो बेगर की तरह होना चाहिए। वो सही कहा गया है, वो इंग्लिश लोगों ने कहा है, लेकिन वो सही है। आयुर्वेद के हिसाब से भी वैसा ही है कि दोपहर का खाना हमें अच्छी तरह से खाना है। ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर आप रात को देर से सोते हैं, अगर आपको सुबह भूख नहीं होती है तो हैवी ब्रेकफास्ट करने का आयुर्वेद कभी भी आपको सुझाव नहीं देता है, सजेशन नहीं देता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएगा वो। देन नेक्स्टली जो है हमें फ्राइड है या ऑयली है, ये चीजें हमें फर्मेंटेड है, जैसे ब्रेड है, इडली है, ये जो चीजें हैं वो थोड़ी कम खानी है। कोरोना जो डिजीज है वो स्पेसिफिकली हमारे चेस्ट यानी हमारे लंग्स के ऊपर अफेक्ट करता है, हमारे थ्रोट के ऊपर अफेक्ट करता है। कफ लाइक सिम्टम्स उसमें पाए जाते हैं, और अगर हम स्वीट चीजें या कोल्ड चीजें खाते हैं तो कफ बढ़ने की संभावना वहां पे ज्यादा होती है। इसलिए हमें रिस्ट्रिक्ट करना है इन चीजों को, जैसे कोल्ड रेफ्रिजरेटेड फूड है, आइसक्रीम्स है, फिर इसमें खीरा है, दही है, केला है, बनाना है, ये चीजें हमें कम खानी। उसके बजाय हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो खाना है, जो लघु माने इजीली डाइजेस्टेबल होता है, जैसे मूंग का सूप है, मूंग दाल है, राइस है, जैसे लौकी, घिया, इस तरह की सब्जियां हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, जिसमें रेशेदार भी होती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन का भी ये फ्रेश फ्रूट्स है, जिसमें हम पपीता खा सकते हैं, जिसमें हम स्वीट लाइम खा सकते हैं, एप्पल्स खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे फाइबर्स को भी बढ़ाती है, और ये फ्रेश विटामिन, ये मॉडर्न के अनुसार जो विटामिन वगैरह है वो भी देती है। आयुर्वेद में भी इसका हमने बताया रहता है। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिए कि फ्रूट्स जो है वो खाने के पहले खाएं, ना कि खाने के बाद खाएं। तो एक ये चीज करेक्ट आप कर लीजिए। नेक्स्ट, खाना क्या करता है? मैंने आपको बता दिया कि खाना इम्यूनिटी बढ़ाता है, लेकिन एक्चुअली क्या करता है? तो खाने से हमें नरिशमेंट मिलती है। आपने देखा होगा कि पूरा दिन अगर हम फास्ट रखते हैं और शाम को खाते हैं तो एकदम से सुकून से मिलता है हमें। तो ये चीज है कि नरिशमेंट मिलता है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। देन सस्टेन, बॉडी को सस्टेन करता है वो। जैसे आपने एक लगातार 6-7 दिन डाइट किया तो 7वें दिन आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है, आप यू फील वीक। तो ये नहीं होता है, वो हमारी बॉडी को सस्टेन करता है।
हमारी मेमोरी बढ़ाता है, हमारे मेंटल फंक्शंस को अच्छा करता है, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ाता है, हमारी अग्नि जो है, अग्नि माने डाइजेशन कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ाता है, और खाने से हमारी कॉम्प्लेक्शन भी अच्छी हो जाती है। तो ये सारे फायदे आयुर्वेद के हिसाब से आहार के या डाइट के बताए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यही इम्पोर्टेंस है जो मैंने पहले कहा, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो बिना डाइट के प्रिकॉशंस के आपके मेडिसिन कुछ भी फायदा नहीं कर रही। और अगर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अगर आप सिर्फ खाने की तरह अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आयुर्वेद में एक कहावत है, पथ्य सती गदार्थस्य किम औषधे न जेब, यानी अगर आप पथ्य यानी जो पथ्यकर आहार बताया गया है वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। और अगर आप अपथ्यकर डाइट ले रहे हैं यानी जो चीजें नहीं खानी वो खा रहे हैं तो मेडिसिन भी वहां पे कुछ नहीं कर सकता। तो मेडिसिन के साथ साथ आपको डाइट का ख्याल विशेष रूप से रखना है, तभी आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी तरह से बनी रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू होगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ जी। ओके ओके। हाँ, आप गायब हुई है, नेक्स्ट स्लाइड डालिए। हाँ, एक देखिए आपकी साइड से कुछ इशू है। मेरे साइड से नहीं, राशि जी के साइड से कुछ इशू है। ओके 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 तो ओके वही ओके। मुझसे फोन करके अभी कह रही थी कि ठीक वो है। चेक कर रही है कि कहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू आया है शायद। ओके ओके, नो इश्यूज, आई विल वेट। हाँ, शी इज ट्राइंग टू चेंज द स्लाइड बट कुछ ओके। होने लग रही होगी। मीनवाइल आप बता सकती हैं जो मेरा आवाज जा रहा है, मेरी आवाज जा रही है? आपकी पूरी आवाज आ रही है। एक ओके ओके, सो नो इश्यूज, आई विल स्टार्ट माय दिस थिंग। ओके, जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। ओके, तो मेडिसिन की बात, मैडम शैल आई स्टार्ट? आपका म्यूट है। आप शुरू करें क्योंकि शायद राशि ओके के एंड पे ओके कुछ ओके इशू था ओके व्हिच ओके शी इज ओके, ट्राइंग ठीक टू है। करेक्ट। ओके, तो तो अभी हमने ये डाइट की बात देखी कि डाइट कितना इम्पोर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द लाइफस्टाइल, दैट इज हमारा एंजाइटी है या डिप्रेशन है, वो चीज कम करने के लिए या कोप अप करने के लिए, स्ट्रेस को कोप अप करने के लिए दूसरी चीज जो अहम चीज है वो है योगा। योगा से हम अपना जो मेंटल बैलेंस है, इक्विलिब्रियम ऑफ मेंटल हेल्थ है, वो हम अचीव कर सकते हैं। तो योगा प्रैक्टिसेस के हम बहुत, हमारे टीवी पे भी आता है, या कल इंटरनेशनल योगा डे है, उसमें भी हम हमारे प्रधानमंत्री जी भी हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि योगा कीजिए। तो एल्डरली पीपल के लिए, एल्डरली जनरेशन, ओके, इज इट स्टार्टेड? it has started working. Okay. So I'll go back to my little bit diet part because a little bit remaining. तो जैसे मैंने कहा था कि डाइट का जो है वो कब खाना कहना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रॉपर टाइम कब है, हम खाना कब खाएं? तो एक तो प्रॉपर टाइम ये है, ये 4-5 चीजें बताई गई है कि जो हमारा खाना डाइजेस्ट पूरी तरह से हो चुका है, इसके ये सिम्टम्स है। जैसे हमारे यूरिन और स्टूल अच्छी तरह से पास हो रहे हैं। सेकेंडली, जब भी चैनल जो है हमारे बॉडी के, सभी चैनल जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो गए हैं, देन हमारे बॉडी में हमें लाइटनेस फील होता है, एंड जो बेल्चिंग आता है, जो डकार आती है, उसमें कुछ भी स्मेल नहीं होता है, एंड वी फील दैट वी अर्ज और वी yearn टू ड्रिंक और ईट समथिंग। दैट इज द करेक्ट टाइम ऑफ टेकिंग द डाइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम।
आई थिंक राशि जी के यहाँ कुछ नेट का इशू चल रहा है, तो उन्हें आपकी आवाज मिल नहीं रही है। मैं उन्हें कहती हूँ कि वो नेक्स्ट स्लाइड करें, बट कुछ उनकी इट्स ओके, लेकिन मेरी आवाज बाकी लोगों को सुनाई दे रही है। आपकी आवाज पूरी तरह सुनाई दे रही है। ओके ओके ओके, हाँ, ठीक है। ओके, तो इस तरह से जब आपको अच्छी तरह से भूख लगे तभी आपको खाना खाना चाहिए, ये एक बात हमें याद रखनी है। सेकेंडली, सभी प्रकार के 6 रोज टेस्ट जो है, जैसे स्वीट है, सार है, साल्टी है, बिटर है, ये सारी टेस्ट जो है नेक्स्ट, हाँ, ये सारी टेस्ट हमें लेनी चाहिए। एंड ये एक मेक श्योर दैट बिटवीन 2 मील्स देयर शुड बी एटलीस्ट 3 आवर्स गैप। जैसे आपने 12 बजे खाया है तो नेक्स्ट मील आप 3 बजे के पहले नहीं खाएंगे। एटलीस्ट 3 आवर्स का डिफरेंस आप 2 मील टाइम में रखेंगे। लेकिन ये भी साथ साथ रखना है कि 6 घंटे तक खाली पेट नहीं रखेंगे, क्योंकि ओल्ड एज में जो रहता है वो हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा खाने की, एक साथ अगर हम खाते हैं तो ब्लोटिंग या फिर फ्लैचुलेंस, ऐसे जिस तरह के सिम्टम्स हम देखते हैं। इसलिए एवरी 3 आवर्स आप थोड़ा थोड़ा खाना ले सकते हैं, जितनी भी आपकी भूख होगी उस तरह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। खाने के बाद हम बात कर रहे थे कि ओल्ड एज में कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ओल्ड एज में जैसे साथ साथ बीमारियां होती है कि हाइपरटेंशन होता है, जॉइंट पेन होता है, या फिर डायबिटीज जैसी बीमारियां होती है। तो उसके लिए हमें योगा बहुत ही, या मेंटल कुछ चीजें होती है, जैसे पहले हमने कहा कि एंजाइटी है या पैनिक फियर है, इसके लिए योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अगर देखा जाए तो योगा जो है, नेक्स्ट स्लाइड, एक्चुअली योगा जो है वो 4 चीजें हैं। उसमें तो पहले यम नियम, यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट बताए जाते हैं, जैसे अच्छी चीज है, जैसे हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, या हमेशा प्राणायाम करना चाहिए, या हमेशा हमें एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से योगा में यम नियम कहे गए हैं। संतोष, समाधान रखना चाहिए, यानी एक सैचुरेशन फीलिंग हमारे इसमें रहना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में सभी हमारे जो कर्तव्य है, सभी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो सारी हम खत्म पूरे कर चुके होते हैं। तो इसलिए अभी हमें एक डिटैचमेंट जैसा हमें एक लेना चाहिए। जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में कहा गया है कि 4 आश्रम बताए गए हैं, जैसे है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। तो जो ये एज जो है हमारा 60 अबाउ 65 जो एज है, वो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम खत्म कर चुके हैं। तो हमें वानप्रस्थ आश्रम की तरफ हमें जाना है। तो इसलिए हमें कुछ चीजें ये करनी है। तो ये स्ट्रेस जो है वो योगा से हम ये अच्छी तरह से उसके साथ डील कर सकते हैं। It improves the lifestyle as well as it will also help to get you detached from the regular जो हमारा वर्ल्ड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ संबंध कम करने हैं, उनके साथ रह के भी हमें डिटैचमेंट की तरफ जाना होता है। तो इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, इससे हमें मेंटल स्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो योगा में क्या क्या कर सकते हैं हम? योगा जो प्रैक्टिसेस है, आसना की प्रैक्टिसेस है, प्राणायाम की प्रैक्टिसेस है, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस है। आसनास जो है, बहुत सारे आसनास बताए गए, करीब 80 टाइप्स की आसनास बताए गए, लेकिन ओल्ड एज में हम सारे आसनास नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो मॉडिफाइड आसनास है, जैसे चेयर पे बैठ के कुछ आसन हम कर सकते हैं, ऐसे आसन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। या हम जितने भी तरह से जितने तक हम पहुंच सकते हैं उतने तक ही हमें फॉलो करना है। हमें इतना कष्ट नहीं करना है कि हम आदर्श स्टेज तक पहुंचे। जैसे सूर्य नमस्कार है, अगर आपको नी प्रॉब्लम्स है तो आई विल नॉट एडवाइज यू टू डू द सूर्य नमस्कार। ओके, जो हमारे रिलैक्सेशन के हैं या स्ट्रेचिंग के लिए जो आसनास बताए गए हैं वो आसनास हमें करने हैं। देन प्राणायाम जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक होते हैं। एक्चुअली प्राणायाम जो होता है वो हमारा सांस जो है, ब्रीदिंग जो है, उसको रेगुलराइजेशन करने की बात होती है। हम सभी को मालूम है कि हमारा लाइफ जो है वो सांसों से है।
जब हमारी सांस खत्म हो जाती है तो हमारा लाइफ खत्म हो जाता है। तो प्राणायाम से क्या करते हैं, प्राणायाम शब्द का मीनिंग है प्राणस्य आयामः प्राणायाम। आयाम का मतलब है उसका जो अंतर है, दो सांसों के बीच का जो अंतर है वो हमें बढ़ाना है, उसको हमें लॉन्ग करना है। तो इसलिए ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट का जो बीच वाला ड्यूरेशन है वो हमें बढ़ाना है। उससे क्या करते हैं, तो हम जैसे नॉर्मल जो आदमी होता है वो 1 मिनट में 18 बार सांस लेता है, लेकिन अगर हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो 1 मिनट में हम 12 सांसें 14 सांसें तक करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, वी आर प्रिजर्विंग अवर ब्रेथ। तो इसका मतलब होता है कि वी आर इंक्रीजिंग अवर लॉन्जिविटी। तो इसलिए प्राणायाम को हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाना है। और प्राणायाम में खास कर करके अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, सूर्य वेदी है, उज्जाई है। ये जो प्राणायाम है आप एक्सपर्ट से सीख ले सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस हर रोज आप कर सकते हैं। तो इससे आपको ब्रीदिंग कैपेसिटी, कोरोना में ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत सारे हो जाते हैं, तो इनको दूर रखने के लिए आपके चेस्ट की या आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ में आपका मेंटल बैलेंस जो है वो भी हमें तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत काम आता है। और लास्टली होता है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो है वो हमें अपने ऊपर ध्यान देने के लिए कि हम चीज में सेल्फ एनालिसिस के लिए, और हमारा योग का जो फाइनल अचीवमेंट है, ऑब्जेक्टिव है, जीवात्मा और परमात्मा का एकत्रीकरण करना, यानी स्पिरिचुअल जर्नी जो हमारी है, इसके लिए हमें बहुत हेल्प करता है मेडिटेशन। टू कंट्रोल आवर माइंड, टू कंट्रोल आवर इमोशंस, टू कंट्रोल आवर स्टेबिलिटी, हमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। अभी एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना, अभी आप अगर ये समझते होंगे कि कभी ना कभी ये कोरोना खत्म होगा, तो ऐसा नहीं है। कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। जैसे बाकी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे मलेरिया है, जैसे वायरल हिपेटाइटिस है, जैसे डेंगू है, ये सारे जो डिजीज है इनके साथ हम जी रहे हैं। इसी तरह हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा और इसको हमें एक्सेप्ट करना है। लास्ट स्लाइड प्लीज, लास्ट बट वन स्लाइड। तो इसे हमें एक तो है वो एक्सेप्ट करना है, ये जो सिचुएशन है इसे हमें एक्सेप्ट करना है। देन नो एक्सपेक्टेशन, हमारे लिए आके कोई हमें मदद करेगा ये हमें नहीं सोचना है, हमें खुद की मदद खुद करनी है। तो ये सेकंड हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा अभी जो हमारी नेक्स्ट जर्नी है। इसके लिए फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। सेकंड इज नो एक्सपेक्टेशन, हम खुद की मदद, आत्मनिर्भर, मोदी जी ने हमें कहा है आत्मनिर्भर बनना है। तो हमारी हेल्थ के लिए और हमारी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए हमें खुद प्रयत्न करना है। थर्ड है डिटैचमेंट, बाकी लोगों को तकलीफ नहीं देनी है, अपना रूटीन हमें खुद सेट करना है, अपना डाइट हमें खुद संभालना है, अपना योगा प्रैक्टिस हमें खुद संभालना है। तो ये है डिटैचमेंट। और लास्टली इसको हमें प्रेजेंट में जीना है, अभी के समय में जो हो रहा है उसका विचार करके उसको हमें पूरी तरह से आनंदित होके लेना है। हमारी पॉजिटिविटी हमें बरकरार रखनी है, हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच रहना है। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों को एक मेरा बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप सब लोग हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, घर पर रहे और पॉजिटिव माइंडसेट में रहे। और इसी तरह से ये जो मेरा टेक होम मैसेज है इसे आप ये करें। और ये लास्ट पिक्चर जो है एक ग्रुप तक बताया गया है कि वो ग्रुप में सभी लोग खुशी है, लेकिन जो पहला वाला पिक्चर है उसमें एक दादाजी अपने पोतियों के साथ खुश है। तो ये पिक्चर हमें आज करना है कि अपने फैमिली के साथ हमें खुश रहना है। So I think with this I will conclude my session and I am very much thankful to Manisha ji and Rashi ji for giving me opportunity to give some of my inputs to my older generation. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much, ma'am, for your time and all the great tips which you have shared with us. I will quickly take few questions which I have received till now. One is that when we were talking about the food,
आपने कहा कि फ्रूट्स जो हैं वो आप खाने के पहले ले सकते हैं, खाने के बाद नहीं। तो Correct. उसमें भी कोई टाइम गैप रखना है? हाँ, खाने के पहले एक 15 मिनट पहले आप फ्रूट खाइए। उसके बारे में एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि आयुर्वेद के हिसाब से जो 6 टेस्ट बताए गए थे, जैसे सारे जो अन्न पदार्थ है उसको 6 टेस्ट में हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर रस जो है, स्वीट जो चीजें है वो हमें पहले खानी है। प्रेफरेंस जो प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देना है। और डाइजेशन के हिसाब से भी अगर देखें तो मधुर रस में फ्रक्टोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है वो, और कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो इसलिए हमें फ्रूट्स पहले खाने चाहिए, 15 या 20 मिनट बिफोर अवर फूड, बिफोर अवर लंच। ओके। और एक और बस सवाल है मैम, काफी टाइम ये होता है कि आजकल घर में रहने से कैफीन कंजम्पशन हो जाता है, चाय या कॉफी का कंजम्पशन, उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर करना। ओके, तो चाय और कॉफी के बजाय अगर आप हल्का सा, हमारे आयुर्वेद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक हर्बल टी बनाया है, उसमें काफी सारे मेडिसिन है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप चाहे तो मैं उसका फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, या फिर आप चाहे तो हमारे इसमें आप रिक्वेस्ट करके आप मंगा सकते हैं सब लोग। तो वो आप बजाय 1 या 2 बार कॉफी या चाय लेने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बियॉन्ड दैट आपको एसिडिटी की तकलीफ देगा, आपको इंसोम्निया जैसे नींद ना आने की तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए ये अवॉइड करके आप शरबत ले सकते हैं, या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं, या हर्बल टी ले सकते हैं, इसका आप परिवर्तन कर सकते हैं। थैंक यू। और एक फाइनल क्वेश्चन मैम, कि आजकल अगेन सब घर पे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, तो कई बार लोगों को इश्यूज होता है, गैस्ट्रिक इशू, या तो कॉन्स्टिपेशन या फिर एक्स्ट्रा गैस, उसके लिए आयुर्वेदा क्या सजेस्ट करता है? हाँ, 2 चीजें हैं। एक तो आप हर आधे घंटे में उठ के एटलीस्ट 100 स्टेप्स लीजिए, एक तो ये पहली चीज कीजिए। और सेकेंडली, अवॉइड फ्राइड फूड एंड दालें जो होती है, खास करके राजमा है, छोले है, ये चीजें जो है, जो आलू है, ये चीजें जो है वो थोड़ा कम खाएं। तो ये थोड़ी सी बदल आप, ये थोड़ा सा बदल आप कर सकते हैं अपने डाइट में, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। और खाने के बाद आप थोड़ी सी सौंफ और अजवाइन चबा के खाए, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के उसको भून के, सुपारी जैसे खाते हैं उसको भून के रखिए, खाने के बाद उसको चबा के खाइए, तो गैस की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो सकती है। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। एक चीज और, कुछ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ये पूछा है कि दे वुड लव टू कनेक्ट विथ यू, सो इज देयर एनी नंबर और ईमेल आईडी दे कैन राइट टू यू ऑन? आई थिंक मनीषा जी हैज माय नंबर एंड ईमेल आईडी, शी कैन कनेक्ट। श्योर, थैंक्स अ लॉट मैम, आपने हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you. It was very much a very good opportunity for me also to interact with all of you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Now we come to the next section. बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था, लेकिन अब जो हमारे साथ आ रहे हैं, जो हमारे बीच में कुछ वक्त से यहाँ हैं, वो है श्री रवि झाकल जी। रवि झाकल जी is an Indian television, stage and film actor, and he is most known for working in Shyam Benegal films. अब Shyam Benegal जी himself is a cult, and उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स को मेरा हमेशा सलाम रहता है। He has also worked with in films like Welcome to Sajjanpur, Well Done Abba, and he is very well known and appreciated for his role of P.V. Narasimha Rao in the TV series Pradhan Mantri. He is a graduate from National School of Drama, Delhi, and I personally believe that Ravi ji is an institution in himself. उनसे बहुत कुछ है सीखने के लिए, जानने के लिए। So रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और प्लीज हमसे अपने बारे में कुछ शेयर करें। शुक्रिया राशि जी, मनीषा जी, मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है और बहुत मुश्किल वक्त है। ऐसे वक्त में इंटरेक्शन से बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे अभी डॉक्टर साहब जो बता रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें तो हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन काफ़ी और चीज़ें जो उन्होंने बताई उनको हम
फॉलो करें तो डेफिनेटली इस युद्ध से जो है हम निकल के आ सकते हैं बाहर। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन नहीं होते, हमारे यहाँ सीनियर एक्टर्स होते हैं। जैसे मैं सीनियर एक्टर्स में से हैं, हमको सीनियर एक्टर बोला जाता है। सीनियर सिटीजन भी हैं, लेकिन हम कभी सीनियर सिटीजन अपने आप को मानते नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घोड़ा और एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता। तो अमिताभ बच्चन उसकी मिसाल हैं। 79 की एज में आज वो उतने ही एक्टिव है जितना एक यंग एक्टर होता है। तो सारे एक्टर्स इसी तरह से एक्टिव रहें और डॉक्टर साहब ने जो सलाह दी है वो सारी सलाहों को माने, तो मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन बनने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। तो पहले तो मैं हरिकृति का धन्यवाद देता हूँ, इतना अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं और इतना यूजफुल चीजें जो है दर्शकों को, लोगों को बता रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। और मेरा जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जैसा मनीषा ने मुझे बताया कि मैं 70 दिन तक कभी किसी जगह लॉकडाउन नहीं हुआ, एक 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 मतलब एक्टर की तरह से या एक ह्यूमन बीइंग की तरह से, क्योंकि हम कभी मतलब अपने आप को लॉकडाउन समझते ही नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी हुई कि मैं बॉम्बे में था और आना चाहता था, 23 तारीख की फ्लाइट भी थी, लेकिन सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई और मैं अपने परिवार से, जो कि जयपुर में था, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची जयपुर में थी, तो मैं वहाँ अपने आप को मतलब एक तरह से क्वारंटाइन ही समझे आप। तो यूँ लगा कि अभी 15 दिन बोला है, चलिए 15 दिन तो निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, 15 दिन बाद फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, सिक्योरिटी बढ़ती गई। ये एक अजब बात मेरे साथ हुई। मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर मैं बीमार हो गया, अगर मुझे कुछ हो गया, या मेरी वाइफ को वहाँ कुछ हो गया, या मेरी मदर को वहाँ कुछ हो गया, तो जैसा हम सुनने में आता है कि कोरोना वाले को कुछ हो गया तो उसको देखने के लिए भी मतलब फैमिली नहीं होती, तो वो जो एक फियर मन में था वो बड़ा मुझे परेशान करता था। तो रोज ही करीब करीब मतलब मैंने कभी इतनी अपनी पत्नी से, इतनी अपनी बेटी से कभी बात नहीं की। वो भी यंग है, 22-23 साल की लड़की है। मैं अपनी वाइफ से करीब करीब रोज ही बात करता था और घंटों करता था, ये एक अजब बात है। और मुझे एक अजीब सी चीज हुई, मुझे घर में मतलब मेरे यहाँ वैसे 2 डॉग हैं जयपुर में, लेकिन बॉम्बे में मेरी डॉटर ने एक स्ट्रीट डॉग को वो दी हुई है, तो उसको फीड वीड करती थी। तो आप देखें कि मैं उस स्ट्रीट डॉग को अपने घर में लाया करता था 4 बजे से 8 बजे तक, उसकी सेवा करने लगा और उसको खिलाने पिलाने लगा, उसके काफ़ी ट्रीटमेंट उसका करता था मैं। तो एक अजब सा डेवलपमेंट मेरे अंदर हुआ। मेरे घर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक लेडी रहती है जो अक्सर मुझे अपने बच्चों की शिकायत करती थी। वो मेरे ख्याल से 70 अप है। तो वो मुझे हमेशा कहती थी अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरी बहू मेरा ख्याल नहीं रखती। तो मुझे बड़ा अजब लगता था कि एक परिवार में एक बुजुर्ग का 3-4 लोग मिलकर के क्यों नहीं ख्याल कर सकते। लेकिन मैं उसमें इंडल्ज नहीं हो सकता था। कभी कभी मैंने उसके लड़के से कहा, मैंने कहा यार कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। लेकिन मैं उनको जरूर कहता था, मैंने कहा आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे बताइए, अगर मैं कुछ कर सकूंगा तो आपके लिए करूंगा। लेकिन मुझे इतना सुकून मिला कि 10-15 दिन बाद जब वो हमेशा नीचे आती हैं अपने भगवान की पूजा वूजा करने के लिए, जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अभी आपका क्या हाल है, आपकी तबीयत ठीक है? तो उन्होंने इतना खुश होके कहा कि अरे बेटा मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरा तो बेटा भी मेरा बहुत ख्याल कर रहा है, मेरी तो बहू भी मेरा बहुत ख्याल कर रही है। तो मेरे लिए एक अजब सा सरप्राइज था कि मतलब ऐसा कोरोना के अंदर ऐसा क्या हुआ कि उनके बच्चों का मन बदल गया। ये एक अजब बात हुई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलिए कोरोना का ही चाहे बहाना हो, एक एक माँ को वापस से बच्चे मिले, बच्चे वापस से माँ की सेवा करने लगे, पता नहीं कैसे मन बदला होगा। मतलब मेरा मन भी बदला, जैसे मैं डॉग की सेवा करने लगा। मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि घर में मतलब डॉग रखें, हम रख भी नहीं सकते क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है। ऐसे पता नहीं मुझे अपनी माँ इतनी क्यों याद आने लगी। मैं कई बार महीनों अपनी माँ से बात नहीं करता था, लेकिन मैं जब भी बात करता था अपनी मदर से, मैं हमेशा व्हाट्सएप पे उनसे कॉल किया करता था। पता नहीं मुझे क्यों उनकी शक्ल देखने की इच्छा होती थी। तो एक अजब से
चेंजेस उनके उनके अंदर मतलब मैंने अपनी मदर के अंदर देखे। मैं कभी भी उनसे बात करता था तो हमेशा मेरी बड़ी भाभी हैं उनकी शिकायत करती थी, ये मेरे को ये नहीं करती, मुझे फलां चीज़ नहीं देती, मुझे ढिकना चीज़ नहीं देती। लेकिन आप मानेंगी मेरी मदर को मैंने एक अलग ही औरत के रूप में देखा, अलग ही बुजुर्ग के रूप में देखा। वो मुझे कहती थी, "अरे रवि, अभी तो तू मैं क्या बताऊँ, ये हरी की बहू तो मेरा इतना ख़्याल रखती है, मेरे रात को पाँव दबाती है, मेरी सेवा करती है, मेरे कपड़े भी वो धोती है, मैं नहीं धो पाती हूँ।" तो मतलब एक नई मदर मैंने देखी, जो हमेशा चीज़ों को लेके कंप्लेंट करती थी, लेकिन वो एक मतलब एकदम अलग ही थी। और मुझे कहती थी, बस तू तू मेरे को फ़ोन करता रहा कर, मुझे तेरा चेहरा देखना होता है, मेरे को तेरे को चेहरे देखने का मन होता है, ऐसी बीमारी है, मेरा मन होता है सब बच्चों के मैं चेहरे देखूँ। हम 9 भाई-बहन हैं। तो एक अलग-सा एक वार्म्थ पैदा हुई है। आप माने मेरी डॉटर को थोड़ा-सा सिम्पटम हुए थे कोरोना के, जयपुर में, तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उसका फ़ियर ज़्यादा खा रहा था, कि अगर मेरी डॉटर को कुछ हो गया तो मैं उसको देख भी नहीं पाऊँगा, मैं उसके पास कैसे जा पाऊँगा, मैं तो निकल भी नहीं सकता यहाँ से। तो एक अजब-सा जो फ़ियर इस लॉकडाउन के अंदर हुआ है, और मुझे लगता है शायद हम लोग जो थोड़े मैच्योर हो गए उम्र में, उनको ये ज़्यादा सताता है, क्योंकि उनके लिए अकेले रहना ऐसे वक़्त में बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मनीषा मुझे बता रही थी कि वो अपने फैमिली को छोड़ के, बेटे और हस्बैंड को छोड़ के अपनी मदर के साथ अभी हैं, वो और उनकी सिस्टर। वो अपनी मदर की देखभाल कर रही है। तो ये एक अलग-सा क्योंकि उनको शायद ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होना, मुझे लगता है कि एक तो एक फैमिली का जो की वार्म्थ होती है, हम कितना अपने बुजुर्गों को देख सकते हैं। हम आज की आपाधापी ऐसी है, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि आज के बच्चे बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। बुजुर्ग आपसे कुछ नहीं माँगता, वो आपको देना ही चाहता है। मेरी अपनी भाभी हैं बड़ी मुझसे, जो मेरे सबसे बड़े ब्रदर थे। बड़े ब्रदर की जो वाइफ हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो इतनी परेशान रहती हैं क्योंकि उनके उनके बच्चे उनको लुक आफ्टर नहीं कर पाते हैं तरीके से। वो हमेशा कंप्लेंट करती हैं। लेकिन उनकी कंप्लेंट भी खत्म हो गई आज के वक़्त में। वो कहती है, नहीं पिछले 2-3 महीने से 1 महीने से 1.5 महीने से मैं बहुत खुश हूँ, सब मेरा ख़्याल रखते हैं। मेरे को खाना नहीं बनाने देते। वो बेचारी खुद अकेले खाना बनाया करती थी। एक अजब-सा जो चेंज हुआ है, मुझे लगता है ये बड़ा अच्छा चेंज है। चाहे ये बीमारी की वजह से हो रहा हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जो जो मैं महसूस करता हूँ, एक एक मैच्योर, मैं सीनियर सिटीज़न अपने आप को कह सकता हूँ। उसके नाते मुझे लगता है कि हम जो मिस करते हैं, वो वार्म्थ मिस करते हैं। आज की यूथ की जो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो छोटे हैं, उनसे हम वार्म्थ एक्सपेक्ट करते हैं। हम उनको कुछ दे ही सकते हैं। वो हमें हम सिर्फ़ हमें लव दें, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। माँ-बाप तो दे चुके होते हैं। एक 70 साल के आदमी से आप क्या माँगेंगे? वो आपको अपने जीवन का सारा एक्सपीरियंस दे चुका है। अब देने की बारी आपकी है, यंग जनरेशन की है। हमें उनको देखना है, जिनको जिनको हम अपने बुज़ुर्ग कहते हैं। और ये मैं मानता हूँ, ये मतलब सत्य भी है कि हम अपने परिवार में अपने बुज़ुर्गों की अगर हम सेवा करते हैं, तो आप मानिए इसी जन्म में उसका फल भी हमको मिलता है। और ये पक्का सच है। बाप माँ अपने बेटे को हमेशा कैसा भी होगा, वो उसकी सेवा करना चाहेगी और उसकी चिंता करना चाहेगी। मैं छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। मेरी मदर एकदम घर में प्याज भी नहीं खाती। आप मानेंगे मेरा छोटा भाई जो है वो उसको शराब पीने की आदत हो गई थी बहुत ज़्यादा। अल्कोहलिक हो गया था वो बहुत ज़्यादा। तो मेरी मदर इतनी उसके बारे में चिंता करती थी, और आप माने वो इतनी ज़्यादा मेरी मदर को परेशान करता था कि मदर कहती थी कि अगर तुझे शराब पीना है तो बेटा तू घर में बैठ के पी ले। मैंने कभी घर में शराब नहीं देखी, लेकिन मैं चाहती हूँ तू खुश रहे, तेरी तबीयत ठीक रहे, तू घर में बैठ के पी ले, मेरे सामने पी ले 2 ड्रिंक, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी तेरे से। मेरी मदर, आप माने जो इतनी शाकाहारी रहीं, वो कई बार चिकन लेके आ जाता था, मेरी मदर उसके चिकन को भी गरम करके देती थी।
तो माँ तो ऐसी होती है, माँ आपसे आपके हर बेवकूफियों को, हर गलती को एक्सेप्ट करने को तैयार रहती है और सिर्फ आपको वार्मथ ही देगी, एक एक प्यारी। मुझे नहीं मालूम मेरी मदर ने मुझे कहा हो कि बेटा मेरे को इस चीज की जरूरत है, दे दे, नहीं, वो कभी नहीं कहती मुझे। मैं कुछ लाके दे देता हूँ तो उसको ले लेती है। तो मुझे नहीं लगता बुजुर्ग आपसे कुछ मांगता है, सिर्फ आपसे प्यार मांगता है, आपसे रेस्पेक्ट मांगता है, आपसे वार्मथ मांगता है। आप 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 खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके बुजुर्ग भी खुश रहेंगे। और हमारा कर्तव्य बनता है आज की जनरेशन का कि हम कैसे अपने बुजुर्गों को, अपने जो घर में हमारे जो ओल्ड लोग बाग हैं, उनको हम कैसे खुश रख सकते हैं, इसका प्रयास होना चाहिए। जो मैं महसूस करता हूँ कि जिसकी जो 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 काफी कम हुआ है आजकल की जनरेशन के अंदर। बहुत ज्यादा थोड़े सेल्फ सेंटर्ड बच्चे ज्यादा हो रहे हैं उनको, क्योंकि एक तो बहुत परिवार छोटे हो गए हैं। हो सकता है मेरे अंदर ये फीलिंग इसलिए हो क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहा हूँ। हम जब घर में थे तो हम शायद 20-22 लोग थे और मैंने एक लंबे वक्त तक उन 20-22 लोगों के बीच में अपना वक्त गुजारा है। तो मेरे अंदर आज भी वही फीलिंग है जो मेरे फादर के अंदर थी, या मेरे ब्रदर के अंदर थी, या मेरे मदर के अंदर थी। मैं कितनी मदर की सेवा कर पाता हूँ ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, मैं बहुत कम अपनी मदर से मिल पाता हूँ। लेकिन ये वक्त ऐसा मेरे साथ गुजरा है कि मुझे हमेशा अपनी मदर याद आती थी। और जब 29 को जब फ्लाइट वगैरह खुली और मैं फ्लाइट से ट्रेवल करके जयपुर आया, और जयपुर आके 10 दिन अपने घर में क्वारंटाइन रहा, और उसके बाद जब मैं अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से, अपनी डॉटर से एक यूजुअल तरीके से मिला, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं सिक्योर हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ। मुझे कुछ भी होगा तो मेरे साथ 2 लोग बाग हैं। जैसा मैं महसूस करता हूँ वैसे ही हमारे सारे जितने भी बुजुर्ग हैं, परिवार के एल्डर्स हैं, वो ऐसा ही महसूस करते हैं। अगर वो अकेले हैं तो आप प्लीज उनको सपोर्ट करें, आप उनसे बात करें, आप उनको आप उनको खुश रखें, आप उनको हग करें। आप उनसे जितना प्यार करेंगे, जितनी अच्छी बातें करेंगे, उतना ही उनका मॉरल बूस्ट होता है, उतना ही प्यार बढ़ता है। जिसकी कमी है आज के वक्त में, जैसा अभी कोरोना का वक्त है, बहुत सारी चीजें बदलेंगी, लेकिन माँ नहीं बदलेगी, फादर नहीं बदलेंगे, बुजुर्ग नहीं बदलेंगे, वो वही रहेंगे। उनको तो और हमारी जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू रवि जी, आपने जो कुछ बातें शेयर की वो बहुत ही जी आज के जमाने के लिए, हम यंगस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है जानना समझना। पर आपसे एक जी मेरा सवाल ये है, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप वापस अपने परिवार के साथ इस टाइम में रहे। एंड इट आई कैन इमेजिन कितना मुश्किल वक्त रहा होगा आपके लिए। बहुत मुश्किल। सल्यूट आपको कि एंड थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज आप अपने परिवार के साथ वापस हैं। एक सवाल मेरा ये है कि आजकल एक चीज होती है कि घर में कई बार बुजुर्गों और बच्चों के बीच में क्लैश हो जाता है। बुजुर्ग अपना एक व्यू रखते हैं, आजकल के बच्चे अपना एक व्यू रखते हैं। एक पहले का जमाना था कि बड़ों ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, आपको वही करना है। पर आज बहस हो जाती है। ऐसे वक्त में क्या किया जाए? जी कई बार बच्चों के भी पॉइंट वैलिड होते हैं कि हम कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बात को कैसे प्रॉपरली हम आगे ले जा सकते हैं? नहीं, देखिए, जो मतलब मेरे साथ खुद के साथ होता है, मेरी डॉटर 20-22 साल की लड़की है। जी कई बार पॉइंट ऑफ व्यू के जो इश्यूज होते हैं वो होते हैं, क्योंकि आज का यूथ बहुत ज्यादा चीजें पढ़ता और देखता बहुत ज्यादा है। हो सकता है हमसे ज्यादा मतलब चीजों का ज्ञान उनको हो, लेकिन अनुभव का ज्ञान ही होता है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरे अनुभव से अगर मेरी डॉटर कुछ अर्न कर सकती है तो वो तो दूसरे से नहीं कर सकती। जी तो एक बार मुझे लगता है कि जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं उनको हमें सुनना चाहिए। सुन के आपको
आपके आर्ग्यूमेंट का कोई अगर जगह लगे आपको कि भाई इसमें आर्ग्यूमेंट बनता है, तो आर्ग्यूमेंट का एक तरीका होना चाहिए। मतलब उनको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि नहीं आप क्या बकवास कर रहे हो, आप बुढ़े हो गए, आपको कुछ नहीं मालूम। ऐसा एहसास नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि एक एक शख्स जिसने आपको पैदा किया है, आपको बड़ा किया है, आपको पढ़ाया लिखाया है, उसका अनुभव और उसका एक्सपीरियंस अपनी जगह है। आप उसको मतलब ऐसे सस्ते में नहीं हटा सकते। तो आपको उनको सुनना चाहिए, और अगर कोई ऐसी बात हो जो आप उनको कह के कन्विंस कर सकते हो, तो वो शक्ति पैदा करनी चाहिए उनको। मतलब जो लोग करते हैं अक्सर कि नहीं आप अभी आप बैठे रहो ना, आप हो गया ना, अभी आप आराम करो, आप हम है ना, हम देख लेंगे, ये रवैया गलत। उनको पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। उनकी कोई भी बात हो, घर का कोई मसला हो, आपके प्रोफेशन का कोई मसला हो, उनको पार्टिसिपेट करने देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत 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 फायदे होंगे, नुकसान नहीं होगा। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, वो आपको कुछ नई बात बताएंगे, चाहे वो, क्योंकि उनके अनुभव से ही आपको बताएंगे। तो ये मुझे लगता है कि उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उनके व्यूज को सुनना चाहिए, और उसमें से क्या अच्छा है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। जो आपको ठीक नहीं लगता आप उसको इनकॉर्पोरेट मत करो, लेकिन उनको ये मत कहो कि भैया मुझे ये नहीं करना, आप रहने दो। तो अगर 10 चीजें वो बताते हैं तो 4 भी अगर आपको अच्छी लगती है अडॉप्ट कर लें, 4 6 चाहे ना करें, लेकिन उनसे ना कहें जी मैंने नहीं की, हाँ 6 मुझे ठीक नहीं लगी। ये मेरा कहना जी। एक सवाल और आपके लिए रवि जी, क्या हो रहा है आज के दौरान? हमारे बुजुर्ग जैसे हम लोग बिगनिंग में बात कर रहे थे कि वो अभी भी लॉकडाउन में है, और एक तरीके से ना वो मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन ऐड करता है। तो आपके हिसाब से इस चीज को, इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए, तो बड़ा डिफिकल्ट सा मामला है। जैसे मैं एक एक्टर हूँ, करीब पिछले 4 महीने से मैंने कोई काम नहीं किया है, और हम काम नहीं करते हैं तो हम मतलब पैसा हमारे पास नहीं आता है अगर हम काम नहीं करते। जी। हमारे जैसे एक्टर की सिचुएशन एक डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है मेरे पास कुछ अपने एसेट्स हों जिससे कहीं मुझे पैसा वैसा आ रहा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको इस तरह की परेशानी, जैसे मेरी वाइफ है, वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, अपनी कथक डांसर है वो। तो यहाँ जयपुर में उसकी अपनी संस्था है, उसके पास करीब 100 बच्चे हुआ करते थे, और वो 8-9 साल से ये काम कर रही हैं, और आज उनके पास एक भी बच्चा नहीं। वो किसी को बुला भी नहीं सकती है, क्योंकि स्थिति ऐसी है जब तक सरकार उसको वो नहीं करती है। तो ऐसी सिचुएशन, वाकई ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है कि हम अब क्या करेंगे। कई बार मुझे भी महसूस होता है कि क्या मेरा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हो गया है। मैं एक एक्टर था, क्या अभी मेरे को मतलब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि सरकार तो कहती है कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग से काम करो। तो ये अभी ऐसे सवाल हैं, ऐसे उलझे हुए सवाल हैं जो मुझे लगता है कि इनका अनफोल्ड अपने तरीके से ही होंगे, क्योंकि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो जीवन तो है, मतलब हमारी लाइफ तो है ना, लाइफ तो खत्म नहीं हो जाएगी। कोरोना के साथ ही अगर जीना है हमको, तो इसके भी रास्ते निकलेंगे। मुझे लगता है उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए हमें, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। क्योंकि देखिए, इनसिक्योरिटी तो हर फील्ड में रही है, हमारे फील्ड में तो सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी है। तो उस इनसिक्योरिटी के साथ ही आपको लड़ना है। ये एक लड़ाई है मुझे लगता है, जो और 2-3 महीने के अंदर एक डेफिनेटली एक फ्रेमवर्क हमको दे देगी। जैसे ये एक नया ऑनलाइन जो है, जिस तरह की ये चीजें बनी हैं, तो हो सकता है इसी तरह की कोई चीजें आगे बने, जहां हमको हमारे प्रोफेशन को एक नया डायमेंशन मिले। हर एक के प्रोफेशन को एक नया डायमेंशन मुझे लगता है मिलेगा। थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। मैंने भी बड़ा मुश्किल से धैर्य पैदा किया है। 2 महीने तो मैं अपने आप से बहुत लड़ता रहा, और इससे पहले कि मुझे कोई और मेंटल इसी इलनेस हो, दिमागी, तो मैंने बड़ी उससे अपने आप से लड़ाई की, और लड़ाई करके मैं अपनी उस सिचुएशन से निकला हूँ। और फिर धीरे धीरे चीजें, जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी आती है कि ऐसा वक्त है, तो अभी इस वक्त के साथ ही हमको जीना है। ऐसा मेरा मानना है कि घबराना नहीं है। घबराने से बीमारी आपको और घेरती है, जहां तक मैं मानता
बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की। एक आखिरी सवाल आपसे कि यंगर जनरेशन के लिए, हमारे समाज के लिए आपका कोई मैसेज? देखिए, मैं यंगर जनरेशन तो मैं एक ही बात उनसे हमेशा कहता हूँ, कई मतलब जगह मैंने ये बात की है, काफ़ी इस वक्त में 10-15 बार इस तरह की कम्युनिकेशन हमने अपने अलग अलग उसमें की है। तो यंगर जनरेशन को एक तो थोड़ा सा अपने आप को लर्निंग के प्रोसेस में डालना चाहिए और आपाधापी से बचना चाहिए। आजकल लोगों को लगता है कि हर चीज़ बड़ी आसान है, मतलब शॉर्टकट जनरेशन बहुत ढूंढ रही है आजकल। तो शॉर्टकट से जीवन चलता नहीं है। शॉर्टकट से आप 2-4 साल निकाल सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं चलता है। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहें, आपको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से, ऑर्गेनाइज तरीके से उस लाइन के अंदर जाना चाहिए। ऐसे भागा दौड़े नहीं होनी चाहिए, जैसे हमारे फील्ड में बहुत करते हैं। माने मतलब इसमें पेरेंट्स को भी मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराता हूँ कि आपकी लड़की हो या लड़का हो, अगर उसे मान लीजिए हमारे प्रोफेशन में आना है, हमारी फील्ड में आना है, तो उसके लिए एक तरीका है, उसी तरीके से आपको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखा, आईना देखा और उठाया बैग और बॉम्बे आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे आप जहाँ भी हैं, दिल्ली में, हैदराबाद में, कहीं भी हैं, अगर आपको किसी हमारी जैसी फील्ड में आना है, हमारी फील्ड में आना है, तो एक सिस्टम के तरीके से आइए। उस सिस्टम से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको बड़े नुकसान हो। ये मैं यंग जनरेशन को कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी ना करें, आपके पास बहुत वक्त है। किसी भी चीज को 2 साल कम से कम आपको देना चाहिए, फिर उसके अंदर आपको जंप करना चाहिए, कोई भी फील्ड। तो मेरा इनको यही कहना है कि बहुत जल्दी ना करें और सुने, किसी की माने, अपने से बड़ों की अपने अपने से बड़ों से सलाह लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं कम्युनिकेशन निकाल के किसी से पूछिए कि मुझे ये काम करना है, तो इसका क्या रास्ता हो सकता है। खुद जजमेंट ना करें, क्योंकि अक्सर यूथ जो है खुद ही अपना डिसाइड कर लेता है जो मुझे ये करना है। उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कोई भी चीज आसान नहीं होती। अगर हम अगर हम उसके रास्ते को, सीधा रास्ता पकड़ के जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि सामने जो है खाई है और हम खाई को पार करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें फिसलने का डर रहता है। तो थोड़ा सा सावधानी और विवेक की आवश्यकता है यूथ को आज के वक्त। थैंक यू वेरी मच सर, आपके एक्सपीरियंसेस जान के बड़ा अच्छा लगा, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे भी पर्सनली, कि कैसे आप अपने आप को कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो। सो थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए और अपनी बातें शेयर करने के लिए। अब इस इवेंट के हम लास्ट सेगमेंट में बढ़ेंगे। उसमें बढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। मैं एक ऐसे इंसान हूँ, मुझे हर चीज लिखी हुई पसंद है। मैं हमेशा हर चीज लिख के तैयार करके फिर वो प्रेजेंट करती हूँ। लेकिन जो हमारे फाइनल स्पीकर हैं आज, उनके बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा। उसका रीजन ये है कि उनसे मैं पिछले कुछ सालों से जुड़ी हूँ, एंड मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करूंगी तो कुछ गड़बड़ करूंगी। इसलिए मैंने सोचा कि उनको इंट्रोड्यूस करते हुए मैं इम्प्रॉम्प्टू जाऊंगी। सो हमारी आज की फाइनल स्पीकर हैं जेवी मनीषा बजाज जी, जो हैं फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ हरिकृत एनजीओ, जिसके सौजन्य से ये वेबिनार आपके पास पहुंच रहा है। इसके अलावा वो एक राइटर हैं, काफी किताबें उनकी छप चुकी हैं, कुछ इन द प्रोसेस हैं। पोएम्स लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, और पॉजिटिविटी का असली मतलब कुछ मायनों में मैंने उनसे सीखा है। अब इंसिडेंट्स बताने जाऊंगी तो आज की सारी शाम निकल जाएगी, पर एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ कि जब ये पूरा कोरोना का माहौल शुरू हुआ, सब बात कर रहे थे कोरोना केसेस की, डेथ्स की, बहुत सारी अदर चीजों की,
अकेले रहने की, और इधर थी मनीषा जी जिन्होंने एक वीडियो सीरीज निकाली मैं खुश हूँ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पे प्रमोट की, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियोज बाय द MyGov हैंडल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So over to Manisha ji for sharing her thoughts and a vision. I think आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं, मुझे मालूम नहीं कि इतने सारी क्वालिटीज मुझ में है कि नहीं. Thank you, Ravi ji. Thank you, Dr. Medha. Thank you all the people who are there with us. आप लोग की ही हिम्मत की वजह से ही हम कुछ भी कर सकते हैं. इनफैक्ट आई शुड से मेधा जी ने एक बार मैंने उनसे कहा और वो मान गई, और इनफैक्ट आई शुड से कि रवि जी ने तो जब मैंने इनसे वीडियो के लिए बात की थी तो ही वाज द पर्सन, उन्होंने मुझसे कहा कि मनीषा ऐसा कुछ करना चाहिए. सो रवि जी, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट कि इंस्पिरेशन इंसान अपने से बड़ों से ही लेता है. तो आप मेरे अग्रज हैं और इंस्पिरेशन मैंने ली, और अगर मैं इस पे खरी उतरी तो आपकी शिक्षा मेरे काम आई और मैं उसको ठीक से कर पाई. इनफैक्ट आज के दिन में जिस सब्जेक्ट को लेकर के हम बैठे हैं, ऑनेस्टली बताऊं तो जब हमारे बीच में जो अलग अलग तरह की विविधताएं आजकल हम देख रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो मैंने धर्मों के बारे में कुछ पढ़ना शुरू किया. लगभग 12 के करीब धर्म हैं, जिनमें से 10 बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, और इनमें से किसी धर्म में ये नहीं लिखा कि आप अपने बुजुर्गों के साथ अत्याचार करें, उनका अनादर करें, उनकी बातों को न सुने. ये एक भी धर्म नहीं मिला मुझे. और मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग अपने बुजुर्गों के साथ अनाचार कर रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं, वो किस धर्म से प्रेरित हैं. वो धर्म मैं ढूंढ नहीं पाई. जबकि जिंदगी को मैं एक साइकिल के रूप में देखूं तो हम अपने बच्चे को जब वो पैदा होता है, किसी काम का मतलब कोई काम अपने आप नहीं कर सकता, बिस्तर पर है, उसका नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, उसको साफ रखना, सब कुछ हम खुशी से प्यार से करते हैं. और वो बच्चा जब बड़ा होता है तो जिसने उनके लिए किया, जब उनको इन सारी चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि लाइफ पूरा 360 डिग्री का चक्कर लेके वहीं पहुंच जाती है, और एक बुजुर्ग वापस से बच्चा ही होता है, सिर्फ उसकी उम्र बड़ी होती है. तो वो जो जब वो दूसरे वाले बचपन में जब सेकंड चाइल्डहुड ऑफ लाइफ आता है तो हम उससे भागने क्यों लगते हैं. तब वो प्यार, वो ममता, वो अट्रैक्शन, वो इफेक्शन, वो कहाँ चले जाते हैं. तब क्यों डिफरेंसेस आने लगते हैं. जब छोटा बच्चा रहता है ना, नए नए दांत निकलते हैं, आप सबको अंदाजा होगा कि वो बच्चा काटना शुरू करता है और सबसे पहले अपने माँ बाप को काटता है, उनकी उंगली पे काटता है, हाथ पे काटता है, कहीं कहीं काटता है, और माँ बाप को कभी बुरा नहीं लगता. उसके काटने पे उसे प्यार से बहला देते हैं. पर जब वही बुजुर्ग किसी बात को ऐसा कहता है जो हमें काटने जैसी दिखती है तो हम चिढ़ जाते हैं. इस चिढ़ने का मुझे कोई रीजन समझ नहीं आता. क्यों चिढ़ जाता, तब क्यों नहीं चिढ़े थे. तब तो हमने कभी अब उस छोटे बच्चे को, दूध मुँहे बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा, कभी उसे उठा के फेंका नहीं, कभी उसे कमरे में लॉक नहीं किया, कभी उसे डे केयर सेंटर में छोड़ के नहीं आया कि ये जो अब दांत काटने लग गया है इसको छोड़ाओ. ये काम हम अपने बुजुर्गों के साथ क्यों करते हैं, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया. और इसके लिए मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम सबको सिर्फ ये याद रखना है कि ये सर्कल जिसमें हम पैदा होकर के घुसे हैं, हम इसी जगह पहुंच के निकलेंगे, हम वापस से बच्चे होकर निकलेंगे. हम शारीरिक रूप से भले बड़े हों, मानसिक रूप से बच्चे ही होंगे. तो जब हमें पता है कि हमें दोबारा उसी लेवल पे जाना है तो क्यों हम उसका ध्यान नहीं रखते. इस लॉकडाउन में मैं काफी देख रही हूँ, बुजुर्गों से बातचीत कर रही हूँ, मिल भी रही हूँ, और मुझे दिख रहा है कि हाँ, लॉकडाउन में एक चार दीवारी में वैसे ही अकेलापन बहुत है बुजुर्गों की जिंदगी में, और इस लॉकडाउन ने वो अकेलापन मल्टीप्लाई कर दिया कई गुना. तो जब वो पहले कम से कम बाहर निकलते थे, टहलने जाते थे, मिल लेते थे, किसी से हंसी बात कर ली, कुछ दुख सुना लिया, कुछ सुख सुना लिया, कम से कम कुछ तो मूवमेंट थी लाइफ में ना. चल के गए, खाना पच गया, किसी से दो बातें हंस के कर ली, तो मेंटली जिसे कहते हैं रिफ्रेश हो गए. अब वो सब चीजें बंद हो गई हैं, जिसका असर पड़ रहा है, जैसे मेधा जी कह भी रही थी कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, हम थोड़ा सा दुखी होने लगे हैं, पैसिमिस्ट हो रहे हैं थोड़े थोड़े. लॉकडाउन खत्म होगा कि नहीं, हम दोबारा से जा पाएंगे कि नहीं, हम फिर से उतने एक्टिव होंगे कि नहीं,
ये सारे सवाल जब हमारे आसपास घूम रहे हैं तो कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना कि हम ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि नहीं, ये लॉकडाउन भी खत्म होगा, हमारे पुराने दिन भी वापस आएंगे और हम फिर से एक्टिव होंगे। हम इस कोविड के साथ जीना सीख जाएंगे, जैसे हम टाइफाइड के साथ जीना सीख गए, हैजे को हमने जीत लिया, मलेरिया के साथ जीना सीख गए, उसको हमने दवाइयों के सहारे जीत लिया, तो हम कोविड को भी जीत लेंगे। बस वो जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी हमें जरूरत है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की, थोड़ी सी आपस में एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है। इससे ज्यादा हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। मैं ये कहूँ कि मैं राशि जी को कुछ दे दूंगी, मैं रवि जी को कुछ दे दूंगी, मैं अमिता जी सामने बैठी उन्हें कुछ दे दूंगी, मैं मेधा जी को कुछ दे दूंगी, कोई किसी को कुछ नहीं देगा। हम सिर्फ एक मेंटल सपोर्ट है जो हम दे रहे हैं, और इस मेंटल सपोर्ट का कोई खर्चा नहीं होता। इस मेंटल सपोर्ट की कोई ये बेशकीमती होती है, पर इसकी कोई कीमत नहीं होती, आप पैसे दे के नहीं खरीद सकते। इनफैक्ट एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे इन दिनों पता चली कि बुजुर्ग बड़े खुश हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से लोगों ने घर में रहना शुरू किया, पोल्यूशन कम हो गया। जब वो अपनी बालकनी में जाके लंबी सांस लेते हैं तो हवा बड़ी अच्छी मिलती है। जहां पे इतनी सारी निगेटिविटीज हैं, वहां पे ये एक अच्छी चीज भी है कि बुजुर्ग ये सोचते हैं कि परिवार घर में है, हम सबके साथ हैं। जैसा कि रवि जी बता रहे थे कि दूरियां कम हो गई हैं, समय ज्यादा देने लगे हैं, तो जब समय का अभाव होता है तो खिटपिट होती है। अब जब समय ही समय है तो वो एक दूसरे की जरूरतें समझ में आ रही है, एक दूसरे के प्रति प्यार। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि सब जगह प्यार ही उमड़ रहा है, कई जगह डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो कई बार एक्सेस ऑफ टाइम लोगों में डिफरेंसेस भी ला रहा है, पर इसका उल्टा भी तो हो रहा है, लोगों को पास भी तो ला रहा है, लोगों को जोड़ भी तो रहा है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, ऑनेस्टली बताऊं, रवि जी को तो पता है, उन्होंने कह भी दिया कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जैसे दोबारा बच्ची हो गई हूँ, मैं दोबारा बचपन जी रही हूँ। मम्मी मम्मी करके उठती हूँ, मम्मी की गोद में सोती हूँ। मुझसे ज्यादा किस्मत वाला कौन हो सकता है जिसे कि माँ मिल रही है हर समय, पापा मिल रहे हैं, मुझसे ज्यादा किस्मत वाला कौन। तो अगर ये लॉकडाउन ना होता, ये कोविड ना होता, तो कभी नहीं आती, मैं पक्का अपने काम में लगी रहती। मैं यहाँ जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो सब अपने दिल पे हाथ रख के पूछें और अपने आप से एक बार सवाल करें कि क्या ये लॉकडाउन नहीं होता तो आप अपने घर में होते, क्या आप अपने परिवार को मिस करते, क्या आप ये जानने की कोशिश करते कि बाहर जो इतनी भीड़ भाड़ है उसके अलावा हमारे भीतर क्या हो रहा है, क्या आपकी आपसे मुलाकात होती, क्या आप आत्म मंथन कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। सो थैंक्स टू दिस सिचुएशन हम इस सिचुएशन से एक अच्छी सी चीज निकाल लेते हैं। और मुझे लग रहा है शायद हमने कहने को बहुत सारी चीजें, और बहुत सारी चीजें हम कह भी सकते हैं, पर मुझे क्या लग रहा है कि हमने 5 बजे शुरू किया था सेशन, अब ऑलरेडी 6:30 बज रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी कि ये एक ऐसा अवसर है जिसने मेरा मुझसे परिचय कराया, आप सबसे परिचय जरूर कराया होगा, आपको अपने परिवार के नजदीक लाके खड़ा कर दिया, आपको उनकी अहमियत बता दी, आपको अपनी अहमियत भी बता दी, आपको समय की अहमियत बता दी, आपने बदलना देख लिया जिंदगी का। एक घमंड था जो इंसान में कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वो चूर चूर हो गया। 1 मिनट में पता चल गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। एक सिचुएशन आएगी और आपकी सारी उड़ाने, आपके सारे पंख कतर के आपको एक पिंजरे में बंद कर देगी। आज की डेट में आप पिंजरों में कैद हैं और जानवर पशु पक्षी आजाद घूम रहे हैं। तो वो जंगल, वो जिनमें हम लोगों ने पशुओं को सबको जू में बंद कर दिया था, आज हम जू में बैठे हैं और सब पशु पक्षी आराम से घूम रहे हैं। तो कोई समय नहीं लगता, टेबल्स कब टर्न हो जाती हैं। हमें अपनी असलियत को नहीं भूलना है। और रवि जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि स्वर्ग है या नर्क है, सब यहीं भोगना है। अगर हम अच्छा करेंगे इसी जिंदगी में भोग के जाएंगे कुछ अच्छा, अगर हम बुरा करेंगे इसी जिंदगी में भोग के जाएंगे। अपनी गलतियां, अपनी जरूरतें, उनके हिसाब से हम अपने हिस्से का सुख और अपने हिस्से का दुख पा करके ही जाएंगे। तो इन सारी बातों के साथ में अगेन जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन सबको थैंक्स करती हूँ।
राशि जी ने बहुत मदद की इस पूरे वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू राशि। थैंक यू रवि जी कि आप मेरे एक बार के कहने पर अपने पूरा समय निकाला, पूरे समय हमारे साथ रहे। मेधा जी, वामन जी, जितने भी लोग हैं, मैं सबको तो इस समय देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो लोग भी साथ में हैं, आपके साथ होने से मुझे एक स्ट्रेंथ मिल रही है, शायद एक हिम्मत आ रही है कि हम कर सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं, हम दोबारा वो ब्रिजिंग कर सकते हैं जिसके लिए हरिकृत एनजीओ को हमने शुरू किया था। ये सिर्फ एक थॉट था दिमाग में कि हमें ब्रिजिंग करनी है 2 जनरेशंस के बीच, बड़ों को बुजुर्गों की बात समझाएं और बुजुर्गों को बच्चों की बात समझाएं। ये नहीं कि सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे भी खराब होते हैं, और सारे बड़े अच्छे होते हैं, बड़े भी जिद्दी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं ना तो वो भी जिद्दी हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ उस जिद को माइल्ड करके एक दूसरे को समझाने की कोशिश करनी है, और उसमें हम सारे साथ जुड़े, आप सबका सहयोग मिले। जो बड़े हैं वो आशीर्वाद दें, जो छोटे हैं वो मुझे गुड विशेस दें, और हम साथ चल के, साथ मिलकर ये अचीव करें कि हम सब हमेशा अपने बड़ों को इज्जत देंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनकी बातों को, इन लाइब्रेरीज को पढ़ेंगे और इनसे अपना ज्ञान वर्धन करेंगे और अपना जीवन सुधारेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच मनीषा जी। बस जाने से पहले एक बात शेयर करूंगी कि ये जो सीरीज है, वेबिनार सीरीज है, ये पहला उसका एपिसोड था। हम इसके साथ हर 2 हफ्ते में एक और वेबिनार विद 1 एक्सपर्ट लेके आएंगे। अब अबाउट आधा घंटे का सेशन होगा जो ये कॉन्सेंट्रेट करेगा डिफरेंट एस्पेक्ट। आज जैसे हमने आयुर्वेदा के बारे में बात की, आगे चल के हम एक डिटेल्ड सेशन योगा पे कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ पे कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स पे हम आगे भी चल के लेके आएंगे एवरी सेकेंड वीक में, जिससे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग वेल को कवर कर सके। यही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा मोटो भी है, टू बिल्ड अ बेटर लिविंग एनवायरनमेंट फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स, इस बात को हम एक कदम और आगे ले जाएं। सो थैंक यू वेरी मच आप सबका, एंड थैंक यू फेसबुक पे जो लोग हमारे साथ लाइव हैं, उनको भी हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you.